Hello students, this is Prakash sir. Once again welcome back to standard 10th. Now we are going to do maths 2, that is chapter 6 trigonometry. Yes, students, you are very much familiar about this chapter because this chapter was there in standard 9th. Here is the further part of trigonometry that we are going to study in standard 10. So students, before moving to practice set 6.1, some of the trigonometry identities you should know. These are the trigonometry identities which you should know before solving the sums of practice set 6.1. So what are the trigonometry identities? So there are, students, three trigonometric identities. The first one is sine square theta plus cos square theta is equal to 1. This is the very famous and very much familiar formula identity, I can say. That is, first one is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second one is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. And the third one is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. So these are the three trigonometry identities we are going to use in practice set 6.1. Okay, so what are they? They are sin square theta plus cos square theta is equal to 1, and 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and third one is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Okay, so moving on to question number 1, practice set 6.1. Question number 1 says that if sin theta is equal to 7 upon 25, that means the value of sin theta is given as 7 upon 25. We have to find the values of cos theta and tan theta. ओके, दिस इज़ अ क्वेश्चन. साइन थीटा दिया गया है, कॉस थीटा और टैन थीटा इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन थीटा इज़ गिवन, कॉस थीटा आपको पता चल सकता है, बाकी का वैल्यू 1 दिया गया है. तो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी. सो सॉल्यूशन पार्ट इज साइन थीटा, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो दिस वी नो. ओके, that is, we can write here trigonometric identity. Okay, so now what is sin theta? Sin theta is given as 7 upon 25, and sin square theta है तो square करना पड़ेगा, तो I will square it later on. First I will write the value of sin theta. Sin theta का वैल्यू लिखूंगा 7 upon 25. Okay, plus cos square theta as it is, and then equal to 1 as it is. देन आई कैन आइदर, मैं यहाँ पर इसको बिना स्क्वायर के वहाँ पर लेके जा सकता हूँ, या फिर मैं यहीं पर स्क्वायर करूँगा और फिर बाद में मैं इसको राइट साइड में शिफ्ट करूँगा. तो दोनों में से आपको एक ही रूल फॉलो करना है. साइमल्टेनियसली आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते. सो सपोज दिस, आई राइट इट हियर कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, एंड देन 1, एंड दिस इज प्लस हियर, नो साइन इज देयर मीन्स प्लस उधर आके क्या होने वाला है, माइनस 7 अपॉन 25 द होल स्क्वायर. एंड नाउ आई विल सॉल्व इट. तो पहले इसका स्क्वायर करूँगा. 1 माइनस व्हाट इज 7 स्क्वायर इज 49 अपॉन 25 स्क्वायर इज 625. तो मैंने स्क्वायर कर दिया. ये प्लस 7 अपॉन 25 द होल स्क्वायर वहाँ पर आके माइनस 7 अपॉन 25 द होल स्क्वायर हो गया. तो 1 माइनस 7 स्क्वायर इज 49, 25 स्क्वायर इज 625, एंड देन आई एम गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई में 625 1 ज़ा 625 माइनस, यहाँ पर मैं 1 ले लूँगा. 1 इंटू 625 माइनस 49 1 ज़ा इज़ 49 अपॉन 625 1 ज़ा 625, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? 625 माइनस 49 इज़ 576 अपॉन 625. तो हियर व्हाट इज़ इन द लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा है. तो देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 576 अपॉन 625. ये स्क्वायर उधर जाके क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? इट विल बी स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट ऑफ 576
अपॉन 625. तो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 576 is the 24 because 24 is 576. And what is the square root of 625? 625 का square root is 25. So in this we got cos theta as 24 upon 25. So this is the first answer we got. Okay, so what was the question आपको मैंने बताया था कि sin theta is given, find the value of cos theta and tan theta. cos थीटा मैंने पता कर लिया. नाउ आई हैव टू फाइंड द tan थीटा. ओके, सो एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख सकते हैं, दैट इज़ tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. सो नाउ सी, आई हैव sin थीटा, आई हैव cos थीटा, आई कैन फाइंड tan थीटा बाय दिस फॉर्मूला ऑल्सो. नो नीड कि आप बार बार इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही लेके सॉल्व कर सकें. तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिया है, दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और मैं दूसरा जो लेने वाला हूँ वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लेने वाला हूँ, दैट इज़ tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ. ओके, सो दैट इज़ tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है, साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है, दैट इज़ 7/25. 7 theta 7/25 and cos theta is 24/25 and we have to divide it. So sin theta is 7/25 divided by cos theta is 24/25 from here. तो इसके आगे आप अगर सॉल्व करेंगे 7/25 एज इट इज़ रखिए. दिस डिवीजन साइन को आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 25/24 हो जाएगा. तो 25/24 हो जाएगा एंड देन वी कैन कैंसल इट. 25 cancels, then what is the answer? 7/24. So what is that actually? That is the tan theta. So what is tan theta? Tan theta is 7/24. So this is the next answer and the final answer. Okay, and then you have to write the answer as cos theta is equal to 24/25 and tan theta is equal to 7/24. So this is the final answer. Okay students, next question number 2. What is question number 2? If tan theta is equal to 3/4, okay, then we have to find the value of sec theta and cos theta. Okay students, so tan theta दिया गया है and we have to find the value of sec theta and cos theta. आपको फॉर्मूला मैंने याद करने बोला था. आपका जो सेकंड फॉर्मूला मैंने जो लिखा था, we know that कि 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. तो अभी मैं ये फॉर्मूला के ले रहा हूँ बिकॉज tan theta दिया गया है एंड सेक थीटा आपको फाइंड करना है. 1 तो इजीली 1 उसका वैल्यू है, वी कैन दिया हुआ है आपको, और ये tan भी दिया हुआ है. स्क्वायर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी कैन गेट सेक थीटा. सो लेट अस सॉल्व फर्दर. 1 प्लस व्हाट इज़ tan थीटा? tan थीटा इज़ 3/4. 3/4 द होल स्क्वायर करना है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है. tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर करना है एंड tan थीटा इज़ 3/4 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पर पहले हम लोग को स्क्वायर करना है. 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ ऑल्सो 16, दैट इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. सो हियर वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई. अभी क्या करना है स्टूडेंट्स? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 16 1 जा 16, यहाँ पर 1 ले लेते हैं. 16 1 जा 16 प्लस 9 1 जा 9 अपॉन 16 1 जा 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. ओके, तो 16 प्लस 9 अपॉन 16, तो 16 प्लस 9 इज़ वॉट? 25/16 and that is equal to sec square theta. Okay, so now suppose मैं इसको बाजू में यहाँ पर लिख दूँ. ओके, यू कैन कंटिन्यू फर्दर नीचे. तो मैं इसको बाजू में लिख रहा हूँ. तो आई विल राइट इट एज sec square theta is equal to 25/16 and now sec square theta, स्क्वायर उधर आके क्या होने वाला है? स्क्वायर रूट होने वाला है. स्क्वायर रूट ऑफ 25/16 and what is the square root of 25? 5 and square root of 16 is what? 4.
इट मीन्स दैट सेक थीटा अपना आया 5/4. तो व्हाट इज़ द सेक थीटा? सेक थीटा का आंसर है 5/4. ओके, वी गॉट सेक थीटा इज 5/4. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड कॉस थीटा. नाउ स्टूडेंट्स, इन 9th स्टैंडर्ड वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट कॉस थीटा इज इनवर्स ऑफ सेक थीटा. कॉस थीटा जो है इनवर्स है सेक थीटा का. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स इनवर्स ऑफ सेक थीटा. सेक थीटा आपका नीचे गया. सो हियर 1 what is sec theta? Sec theta is 5/4. If I write here as 1 upon what is sec theta? 5/4. So I will write it as 5/4. It means that 1 upon fraction आया तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4. द फाइनल आंसर विल बी 4/5. तो शॉर्टकट में आपका आंसर क्या आएगा? cos थीटा इज इक्वल टू 4/5. ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर. तो एक बार आपको आंसर करके लिखना होगा. तो आंसर सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 एंड cos थीटा इज इक्वल टू 4/5. तो दिस इज द फाइनल आंसर स्टूडेंट्स. ओके, डोंट फॉरगेट टू राइट आंसर. आंसर आपको लास्ट में लिखना है. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 40/9 फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोसेक थीटा एंड साइन थीटा. तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि cot थीटा दिया गया, वी हैव टू फाइंड कोसेक एंड साइन थीटा. और cot थीटा के फॉर्मूला में कोसेक आता है. तो वी नो दैट व्हाट वी नो दैट 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ओके, दिस फॉर्मूला दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. वी आर गोइंग टू राइट इट हियर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. और यहाँ पर आपको वैल्यू दिया गया 1 प्लस व्हाट इज cot थीटा इज 40/9. तो 40/9 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ओके, तो 40 स्क्वायर क्या आएगा? 40 स्क्वायर इज 1600 एंड देन 9 स्क्वायर इज 81. ओके, एंड हियर आई एम गोइंग टू टेक एस अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा एंड देन आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा. तो 81 1 ज़ा 81 प्लस 1 इंटू 1600 इज 1600 अपॉन 81 1 ज़ा इज 81. सो लाइक दिस वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड दिस ऑल्सो. ओके, सो व्हाट इज़ दैट कोसेक स्क्वायर थीटा. तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा मैं यहाँ लिख देता हूँ. कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ लिख देता हूँ. और जो भी इसका एडिशन आएगा 1681 अपॉन 81 में इसको राइट में लिख दिया. आई हैव चेंज द साइड्स. कोसेक स्क्वायर राइट में था, उसको लेफ्ट में लिखा. ये लेफ्ट में था, इसको मैंने राइट में लिख दिया. ऐड भी कर दिया 1600 प्लस 81 1681 अपॉन 81. एंड नाउ आई हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. ये स्क्वायर वहाँ पर जाके क्या होने वाला है? स्क्वायर रूट आने वाला है. तो इट विल बी कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1681 अपॉन 81. ओके, सो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस. यहाँ पर मैं अगर सॉल्व कर दूँ, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप विल बी कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 1681 दैट इज़ 1681 इज 41 अपॉन एंड स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9. तो 41/9 इज द वैल्यू ऑफ द कोसेक. देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 41/9. एंड वी हैव टू फाइंड नाउ साइन थीटा. तो एज द प्रीवियस सम में हमने देखा, तो उसी तरह से यहाँ पर साइन थीटा इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा. दैट मीन्स यहाँ पर मैं ऐसा लिख दूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि इनवर्स है. और ये सब हम फॉर्मूले जो हम लोगों ने 9th में पढ़े हैं. तो 1 अपॉन व्हाट इज़ कोसेक थीटा? कोसेक थीटा इज 41/9. 41/9 तो मैंने आपको अभी पढ़ाया है सम नंबर 2 में दैट साइन थीटा विल बी 41/1 इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन. इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन विल बी रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन 9/41. इसका आंसर आएगा 9/41. तो व्हाट इज़ द फाइनल आंसर? आंसर विल बी कोसेक थीटा इज इक्वल टू 41/9 एंड साइन थीटा is equal to 9/41. So this is the final answer of question number 3. Okay students.
So now question number 4. What is this? Question number 4 says if 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0. If 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0, then find the values of sec theta, cos theta and sin theta. तो हमें sec theta, cos theta और sin theta का वैल्यूज पता करना है. What is given students? That we have to write it first. So I am starting with the solution. Solution is what is given? Given is 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0. So this minus 12 cosec theta I can take it to the right hand side. So 5 sec theta is equal to 12 cosec theta. ओके तो मैंने क्या किया, माइनस 12 कोसेक थीटा को मैंने राइट हैंड साइड में ले लिया. दैट विल बी 12 कोसेक थीटा. माइनस उधर रखे पॉजिटिव हो गया. ओके सो दिस आई विल राइट इट. कोसेक थीटा जो है वो मल्टीप्लाई बाय 12 है, तो वहाँ पर जाके डिवाइड बाय 12 हो जाएगा. सो आई विल राइट इट हियर एज सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा. सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5. तो जिस तरह से हम मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा वहाँ पर जाके डिवाइड बाय हो गया, तो इस तरह से मल्टीप्लाई बाय 5 वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 हो जाएगा. सो नाउ सेक थीटा डिवाइड बाय कोसेक थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5. तो आई राइट इट इन डिवाइड फॉर्म. सेक थीटा डिवाइड बाय कोसेक थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5. एंड व्हाट इज सेक थीटा? सेक थीटा जो है दैट इज इनवर्स ऑफ कॉस थीटा. सेक थीटा जो है इनवर्स ऑफ कॉस थीटा है, तो आई विल राइट इट हियर एज सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा और ये डिवीजन साइन एज इट इज़. कोसेक थीटा इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा. इनवर्स मतलब ऊपर 1 होता है और नीचे साइन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 एज इट इज़. तो ये जब डिवीजन फॉर्म जो है ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्टूडेंट्स ये रेसिप्रोकल हो जाता है. तो 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1, क्योंकि डिवीजन का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेकंड फ्रैक्शन जो है वो रेसिप्रोकल होता है. 1 अपॉन साइन थीटा का साइन थीटा अपॉन 1 हो जाएगा. तो आई विल राइट इट इज साइन थीटा अपॉन 1 और यहाँ पर आपका 12 अपॉन 5 एज इट इज़. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप. आप देख रहे हैं कि साइन थीटा 1 जा साइन थीटा होगा. न्यूमरेटर में आएगा साइन थीटा 1 जा साइन थीटा. न्यूमरेटर में साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5. सॉरी. नाउ वी कैन से दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा. तो इस तरह से आई विल गेट इट नाउ. टैन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5. अभी मुझे देयरफॉर टैन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 मुझे टैन थीटा का वैल्यू मिल गया. एंड नाउ आई कैन यूज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी एंड आई कैन फाइंड सेक थीटा बिकॉज वी नो दैट. आपको मालूम है कि 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो मैंने शुरू में लिए थे उसका सेकंड वाला अगर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लेंगे दैट इज़ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. तो मुझे आप देख रहे हैं कि नाउ आई हैव गॉट द टैन थीटा और ये टैन थीटा जो है टैन थीटा से मैं सेक थीटा फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि सेक थीटा और ये जो टैन थीटा है ये कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में आ रहा है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. तो दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी. ओके सो नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टैन थीटा इन दिस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी एंड आई विल गेट द वैल्यू. तो व्हाट इज tan theta? Tan theta is 12 upon 5 the whole square is equal to sec square theta. So I will square it first. 1 upon 1 I can write it here. 12 square is 144 upon 5 square is 25 is equal to sec square theta. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 1 जा 25 प्लस 144 अपॉन 25 1 जा 25 एंड दैट इज इक्वल टू sec square theta. तो 25 plus 144 is what? I think so 169 upon 25 that is equal to sec square theta. तो I will write it उल्टा. sec square theta मैं इस तरफ लिख लूँगा और वैल्यू उधर लिख दूँगा. तो sec square theta is equal to 169 upon 25 and I will take the square root. अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो sec theta जो है is equal to under root
169/25। तो सेक थीटा जो है, सेक थीटा का यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आई विल कंटिन्यू हियर। तो सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 169? 169 का स्क्वायर रूट कितना आएगा स्टूडेंट्स? दैट इज़ 13। तो 13 अपॉन व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 25? 25 का 5 आया, तो सेक थीटा कितना है? 13/5। तो आई हैव गॉट द वैल्यू फॉर सेक थीटा, दैट इज़ 13/5। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव टू फाइंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव टू फाइंड हियर इज़ द कॉस थीटा। कॉस थीटा फाइंड करना है। कॉस थीटा इज़ नथिंग बट द इन्वर्स ऑफ सेक थीटा। कॉस थीटा जो है इन्वर्स ऑफ सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू मुझे अब मिल गया है, तो आई विल राइट cos theta is equal to 1/sec theta. So I'll write it here 1/sec theta. तो cos theta is equal to 1/sec theta. तो 1 what is sec theta? Sec theta is a fraction 13/5. It means the answer of cos theta is what? Reciprocal of 13/5, that is equal to 5/13. So in this way I got the answer of cos theta also. Okay, I got the answer of cos theta. And now we have to find sin theta. Now we have to find sin theta. So you can see here we have to find sin theta. Sin theta के लिए अभी आप देख रहे हैं कि I have the value of cos theta. I have the value of cos theta. I can take 1 plus sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ये फॉर्मूला ले सकते हैं। अगेन इस तरह से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। और एल्स आप यहाँ पर आप देखेंगे कि एक यहाँ पर लिखा गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/5, जिसमें साइन थीटा आपको फाइंड करना है, कॉस थीटा आपको मिला है 5/13, मिला है 5/13। तो दिस आई कैन कंटिन्यू विथ। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/5। I have written from here sin theta upon cos theta is equal to 12/5। तो ये मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो sin theta upon cos theta is equal to 12/5 and now I am going to substitute cos theta in that। तो first of all ये cos theta मैं इसको वहाँ पर ले लूँगा। So my next step will be sin theta is equal to 12/5 cos theta। तो ये डिवाइड बाय cos theta था, वहाँ पर आके मल्टीप्लाई बाय cos theta हो गया। तो इसमें मैं अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो my next step will be sin theta is equal to 12/5. What is cos theta? Cos theta is 5/13. So directly I will write 5/13, and I can say that see 5 and 5 get cancelled. So what is the final answer? 12 ones are 12 and 13 ones are 13. So what is the answer, students? The answer is sin theta is equal to 12/13. Okay. So this is the last answer, sin theta. और इस मैंने आपको कहा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लेके, जैसे सम नंबर 1 हमने एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 6.1 का, वैसे करके आपको कॉस दिया गया, आप साइन फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो बिफोर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ प्रैक्टिस सेट 6.1, we shall draw the table for the trigonometric ratios, that is sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta for different angles, that is for angle 0, 45 30 degree, sorry 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. We are going to find the values for these angles for trigonometric ratio, that is sin theta. तो sin theta के लिए हमें sin 0, sin 30 का वैल्यू क्या होगा, sin 45 का वैल्यू क्या होगा, sin 60 का क्या होगा, sin 90 का क्या होगा। ये टेबल हमें याद रखने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको आई विल राइट इट एज 0 के नीचे 0, 1 2 3 4, आई विल राइट इट लाइक दिस एंड आई विल डिवाइड बाय 4, divide by 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 4, then I will cancel it, 4 cancel, इसका 1 बच गया। यहाँ पर 3/4 आ रहा है, कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कैंसिलेशन हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यहाँ पर भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, एंड 0/4 इज़ नथिंग बट 0, 0/4 इज़ नथिंग बट 0। तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे।
तो 0 का स्क्वायर रूट कितना आता है 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है 2 और इसका कैंसिलेशन करने के बाद 1/2 हो गया। इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 √2 एज इट इज़, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है 1.41, हमने ऐसे नहीं लिखना है, हमें √2 ही लिखना है। और √3 का भी एज इट इज़ √3 लिखेंगे, √4 विल बी 2 एंड √1 विल बी 1। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin 0, sin 30, sin 45 एंड sin 60 एंड sin 90। तो ये सब वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पर अभी पेंसिल से लिखा था, उसको रब करके हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, वापस डिराइव करके बता रहा हूँ। व्हाट आई एम राइटिंग हियर, आई एम राइटिंग हियर 0, 1, 2, 3, 4 एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हाट, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4 एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हाट, लास्ट स्टेप कैंसिल कर लेंगे। तो कैंसिलेशन यहाँ पर नहीं आता, 0 डिवाइड बाय 4 इज़ व्हाट 0, तो आई विल राइट इट हियर 0। ओके, आई विल राइट इट हियर 0, 1/4 कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, 2/4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 1/2 आया। और फिर यहाँ पर भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा और यहाँ पर कैंसिलेशन हो रहा है 1 ज़ा। ओके, सो आई विल राइट इट हियर 1, आई विल राइट इट हियर एज 1। ओके, सो नाउ फोर्थ स्टेप इज़ व्हाट, टेकिंग द स्क्वायर रूट। 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है, 2 का स्क्वायर रूट √2 एज इट इज़ आएगा, रूट नहीं जाता है तो 3 का स्क्वायर रूट भी हम लोग √3 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1। ये सब वैल्यूज़ आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैं ये रफ कर रहा हूँ और ये वैल्यूज़ ऊपर लिख रहा हूँ। तो दैट इज़ हाउ वी गॉट द साइन थीटा का वैल्यूज़। ओके, सो आई विल राइट इट पेन नाउ, 0 एज इट इज़, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड दिस इज़ 1। तो ये मैंने रफ में किया था करके मैंने पेंसिल से लिखा था, सो दैट आई कैन रब इट। अभी फिर अपने को लिखना है नेक्स्ट इज़ कॉस थीटा, नेक्स्ट इज़ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को जिसका रिवर्स लिखना शुरू करें, 1 यहाँ पर लिखिए, देन √3/2, देन 1/√2, देन 1/2 यहाँ पर लिखिए एंड देन 0 आप यहाँ पर लिखिए। तो दिस इज़ हाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ cos थीटा। नाउ सपोज आपको कोई पूछेगा व्हाट इज़ cos 30, तो cos 30, सी cos 30 इज़ cos and 30, cos 30 is √3/2। okay, so cos 30 is √3/2 as well as sin 60 is also √3/2। sin 60 √3/2 है, cos 30 भी √3/2 है, sin 45 1/√2 है, cos 45 also is 1/√2 and sin 30 is half and cos 60 is half। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे सिमिलरिटीज़ हम देख सकते हैं। अभी हम फाइंड करेंगे tan थीटा। क्या फाइंड करेंगे? tan थीटा। आपको मैंने बताया था tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा यहाँ पर 0 है, 0 डिवाइड बाय 1 जो होएगा आपका 0 होगा, 0 डिवाइड बाय 1। तो tan का फॉर्मूला क्या है, sin अपॉन cos, 0 डिवाइड बाय 1 इज़ व्हाट 0। तो 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो 1/2 डिवाइड बाय √3/2। आप देखेंगे इसको मैंने जब मल्टीप्लाई किया 1/2 इंटू 2/√3 हो जाता है, तो 2 गेट्स कैंसिल, तो 1/√3 आ जाता है, 1/√3। इसको अगर हम शॉर्टकट तरीके से याद रखेंगे तो सीधा सीधा आप ऐसा करो कि डिवाइड बाय 2 कैंसल्स, क्योंकि देखो ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो इस तरह से आप ऐसे सोचो कि डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय कैंसिल, तो 1/√3 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 1/√3। इधर भी √2/√2 नीचे डिनोमिनेटर में √2/√2 कैंसल्स, तो 1/1 आ गया, मतलब 1 आ गया। इधर भी /2 कैंसिल, √3/1 मतलब √3 आ गया, और 1/0। सी एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू राइट हियर एज नॉट डिफाइंड। ओके स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू राइट इट एज नॉट डिफाइंड। जब आपको tan थीटा का वैल्यू मिल गया, तो जैसे sin थीटा का वैल्यू मिला और cos थीटा का वैल्यू उसका हमने उल्टा ले लिया, tan थीटा का लेते ही हम लोग cot थीटा के वैल्यू उसका उल्टा ले लेंगे। cot थीटा विल बी नॉट डिफाइंड हियर, √3 इधर आ जाएगा और फिर बाद में 1 एज इट इज़, 1/√3 एज इट इज़, और ये 0 यहाँ पर आ गया। तो देख रहे हैं आप sin थीटा का वैल्यू के लिए मैंने 0 1 2 3 4 लिया था, डिवाइड बाय 4 किया था, कैंसिल किया था और रूट निकाला था। 4 स्टेप्स उधर बहुत ज़रूरी थे। फिर cos थीटा
मैंने उल्टा लिखा साइन थीटा का। टैन थीटा के लिए मैंने क्या किया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा। 0/1 तो 0 होता है। 1/√2 डिवाइड बाय √3/2। आप देख रहे हैं कि 2 गेट्स कैंसल, क्योंकि ये डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है तो ये 2 ऊपर जाता है, तो 2 कैंसिल हो गया 1/√3। तो मैंने शॉर्टकट मेथड और एक बताया था कि डिवाइड बाय टू कैंसिल 1/√3, √2 गेट कैंसिल 1/1, डिवाइड बाय टू कैंसिल √3/1, तो √3/1 मीन्स √3, और 1/0 नॉट पॉसिबल है करके नॉट डिफाइंड लिखा। जैसे मुझे टैन थीटा का वैल्यू मिला, आई कैन राइट द वैल्यू फॉर कॉट थीटा। कॉट थीटा है इसका रिवर्स उल्टा, तो 9D नॉट डिफाइंड, ये √3, ये 1/√3 और ये 0। ओके, तो आपको पता है कि कोसेक थीटा इज़ इनवर्स ऑफ साइन थीटा। कोसेक थीटा इज़ इनवर्स ऑफ साइन थीटा। और आपको मैंने ट्रिक बताया था, इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दैट। फॉर एग्जांपल 1/2 होगा तो 2/1 आंसर आएगा। ओके, तो इस तरह से कोसेक इज़ 1/sin थीटा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कोसेक थीटा विच इज़ इनवर्स ऑफ साइन थीटा। तो इनवर्स में आपको पता है ऊपर 1 लिखा रहता है, 1/0। 1/0 इज़ अगेन नॉट डिफाइंड, 1/0 यहाँ पर भी आता है, 1/0 नॉट डिफाइंड लिखा था। तो कोसेक थीटा इज़ इनवर्स ऑफ साइन थीटा, कोसेक थीटा इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा। तो 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। 1/फ्रैक्शन, तो ऊपर 1 है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर 1 लेना है। 1/फ्रैक्शन इज़ रेसिप्रोकल ऑफ दैट फ्रैक्शन 2/1, 2/1 मीन्स 2। 1/फ्रैक्शन √2/1, तो ये आया आपका √2। और 1/फ्रैक्शन तो 2/√3, तो 2/√3, और 1/1, 1/1 कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वी गॉट द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का जैसे वैल्यू मिला उस तरह वैसे हम लोग अभी सेक थीटा का उसका इन्वर्स ले लेंगे, उल्टा ले लेंगे, रिवर्स ले लेंगे, सॉरी। ये 1 यहाँ पर लिख दिया, ये 2/√3 यहाँ पर लिख दिया, ये √2 बीच में आ गया, ये 2 यहाँ पर आ गया, नॉट डिफाइंड आपका। इस तरह से यू कैन सी दैट वी हैव कंप्लीटेड द टेबल विच इज़ रिक्वायर्ड टू पुट द वैल्यू ऑफ सपोज कॉट थीटा। कॉट 30 का आ गया, कॉट 30 आप देख सकते हैं, कॉट 30 इज़ √3। और कोसेक 60 का आ गया, तो कोसेक 60 इज़ 2/√3। तो आप देख सकते हैं कि हमने टेबल सक्सेसफुली बना दिया है। अभी आप एग्ज़ाम में एक बार ये टेबल बना दिए, आप इसमें देख के सम्स में वैल्यूज डाल सकते हो, ताकि आपका वैल्यूज जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, और वो वैल्यूज़ आपके मतलब बिन चूक आप उसमें डाल सकते हो, मतलब गलती नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने टेबल अच्छी तरह से बनाया है। और इस तरह से आपको टेबल याद रखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो और एक शॉर्टकट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये फर्स्ट लाइन भी आपने याद कर लिया 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1, तो भी आप डायरेक्टली कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा फाइंड कर सकते हो। नहीं तो 0, हाफ, 1/√2 और √3/2, 1 ये आपको कैसे आया वो मैंने आपको बताया है कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके फिर डिवाइड बाय 4 करके कैंसिल करके रूट निकालना है। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आपको साइन थीटा के भी ये वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं। अन्यथा आपको अगर शॉर्टकट में याद रखना है तो ये पहले वैल्यूज़ याद रखिए। कॉस थीटा आपको मिल जाएगा 1 इधर लिखो, √3/2, 1/√2 हाफ और ये 0, और टैन थीटा को आपको मालूम है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड करना है 0/1, 0। इसका फ्रैक्शन डिवाइड कैसे होगा, फ्रैक्शन कैसे डिवाइड होता है, अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो उसको कैंसिल कीजिए, 2 कैंसिल 1/√3 आ गया। ओके, √2 कैंसिल 1/1 तो 1 लिख देंगे, 2 कैंसिल √3/1 तो √3 लिख देंगे, और 1/0 है नॉट डिफाइंड होगा। ओके, तो इस तरह से आपको कॉट थीटा भी उल्टा लिखेंगे, और कोसेक थीटा जो है साइन थीटा का इन्वर्स होता है, 1 ऊपर लगेगा, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, 1/फ्रैक्शन 2/1 होता है, 1/फ्रैक्शन √2/1 होता है, 1/फ्रैक्शन 2/√3 होता है, और 1/1 इज़ 1 होता है। तो कोसेक थीटा मिलते हैं, सेक थीटा आपको मिल जाएगा, ये रिवर्स लिख दीजिए। सो इस तरह से आपको ये टेबल, आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना है, आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये टेबल बनाने के बाद ही आप यहाँ से देखकर वैल्यूज़ आप आंसर में लिख दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ प्रैक्टिस सेट 6.1. तो व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ प्रैक्टिस सेट 6.1? तो क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा का वैल्यू दिया है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। देखिए यहाँ पर वैल्यू पूछा है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं दिया है, अदरवाइज हम लोग को वैल्यू मिल जाता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रिक लगाएंगे। हम लोग को पता है सॉल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, और वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा दिया गया है। फ्रॉम द टेबल आप देखेंगे तो विच वैल्यू इज़ 1, tan थीटा के इसमें 1 कहाँ पर है, यहाँ पर मतलब tan 45 इज़ 1, tan 45 1। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। दिस इज़ फ्रॉम टेबल, मैंने टेबल ऊपर बना लिया था। तो इफ़ वी कंपेयर दिस 1 1 इक्वल tan इक्वल, दैट मीन्स थीटा इज़ व्हाट 45, थीटा इज़ व्हाट 45। ओके, तो अब यहाँ पर आपको क्या क्या पता करना है, साइन थीटा। अभी ये सम के लिए थीटा आपका 45 है, तो साइन 45 प्लस कॉस 45 अपॉन सेक 45 प्लस कोसेक 45 आपको फाइंड करना है। तो वो जो वैल्यूज़ है साइन 45 हम टेबल से देखेंगे, कॉस 45, सेक 45 और कोसेक 45 हम टेबल से देखेंगे। तो अभी हम पहले लिखेंगे साइन 45 का वैल्यू कितना है, और कॉस 45 का वैल्यू कितना है, और सेक 45 का वैल्यू कितना है, और कोसेक 45 का वैल्यू कितना है। तो व्हाट इज़ साइन 45, अगर हम टेबल से देखेंगे, साइन 45 इज़ 1/√2, साइन 45 इज़ 1/√2। तो आई विल राइट इट हियर, साइन 45 इज़ 1/√2। व्हाट इज़ कॉस 45, कॉस 45 इज़ ऑल्सो 1/√2, कॉस 45 इज़ ऑल्सो 1/√2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस 45 इज़ ऑल्सो 1/√2। एंड व्हाट इज़ सेक 45, सेक 45 इज़ √2, sec 45 is √2। and what is cosec 45, cosec 45 is also √2। तो ये मैंने टेबल देख के मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ लिखा है। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम टेबल वी गेट। ओके, तो टेबल से हमें मिला। अब जो है आपको फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ये आप यहाँ पर लिखो, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और डू द नेसेसरी ऑपरेशंस एंड यू विल गेट द आंसर। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड साइन थीटा, दैट इज साइन 45। ओके, साइन 45 प्लस कॉस 45 अपॉन सेक 45 प्लस कोसेक 45। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 45, साइन 45 का 1/√2 है। ओके, प्लस कॉस 45 का अगेन 1/√2 अपॉन डिनोमीटर में सेक 45, सेक 45 कितना है √2 प्लस कोसेक 45 ऑल्सो √2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमीटर इज सेम, तो आई विल राइट इट हियर वंस, दैट इज √2, और ये 1 + 1 कितना हो गया 2√2। तो 2/√2 आ गया इन द न्यूमरेटर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1√2 प्लस 1√2 कितना आ गया 2√2 आ गया, 1√2 प्लस 2√2 आ गया। तो इसको हम डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे, तो इट विल बी लाइक दिस, 2/√2 डिवाइड बाय 2√2। ओके, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग रेसिप्रोकल लेने हैं, 2/√2 ये डिवीजन का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 1/2√2, 1/2√2। तो इसमें आप देख रहे हैं 2 गेट्स कैंसल, अभी यहाँ पर बचा 1, 1 1 ज़ 1, √2 इंटू √2 इज़ व्हाट 2। तो आप देख रहे हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस कॉस 45 प्लस सेक 45 प्लस कोसेक 45 इज हाफ। तो वी कैन डायरेक्टली राइट नाउ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा plus cosec theta as half. So this is the value of whatever they have asked, and this is the final answer. Okay students, have you understood? Okay.